पढ़ना है दीप. अरे प्रेक्षा पढ़ रही थी, सॉरी. यस सर। प्रेक्षा प्रेक्षा. लेजिस्लेटिव पावर्स. कहाँ से? ये रहा, ये लेजिस्लेटिव पावर्स. Legislative powers. All bills other than money bills can originate in any house of the parliament. No bill can become a law unless agreed to by both the houses. If there is disagreement, the president may summon both the houses of the parliament in a joint meeting. At the joint sitting, issues are decided by a majority of the members of both the houses present and voting. The parliament is complete to नहीं, com कंप्लीट नहीं, नहीं कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल. कैपेबल टू मेक ए लॉ. पार्लियामेंट इज कैपेबल टू मेक ए लॉ. इन केस कभी the, कभी वो सब लिस्ट किया है. हाँ. the parliament is competent to make laws on matters in the union list. The parliament has exclusive powers to make laws on all the subjects mentioned in the union list, including important subjects like defense, banking, communications, foreign affairs, etc. Matters in the concurrent list, along with the state legislative assemblies, the parliament can make laws on the subjects listed in the concurrent list. For example, education, नॉलेज. forest, adoption, success. ये क्या है? सक्सेशन. Success, सक्सेशन ही है. succession. हाँ. हाँ, trade union. If there is a conflict between the union parliament and the state legislature on any law in this list, the union law will prevail. Residuary रेसिड्यूरी power. पावर. रेसिड्यूरी पावर. हाँ. The parliament possesses residuary powers. It means that it can make laws with respect to all those matters which are not mentioned in any of the three lists: the union list, the state list, and the concurrent list. Matters in the state list. The state list comprises matters related to agriculture, animal husbandry, public health, local government, police, etc. The parliament can legislate even on subjects included in the state list. During the proclamation of an emergency, when the Rajya Sabha passes a resolution by two-thirds majority that a subject in the state list has assumed national importance, when two or more states are of the opinion that Parliament should legislate on the subject given in the state list, the Parliament may make an act on that subject, but that would be applicable only to the consenting states. Ordinances. The President is empowered to prom- ये क्या है? प्रोम्यूलेट. Promulgate on an ordinance at a time when the Parliament is not in session. It has the same effect as an act. All ordinances must be put up before both the houses for the approval. Ordinances cease to operate after 6 weeks from the reassembly of Parliament unless they are approved by the houses. Powers during emergency. When there is a total breakdown of the constitutional machinery in a state of emergency is declared in the state. During the period of emergency, the parliament becomes the legislature in the state concerned and assumes all powers, including the financial powers of the passing the state's budget. ओके, थैंक यू. ओके, फेयर इनफ. तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या दिया और इसमें क्या पूछा है पता नहीं. आपको वन ऑन वन भी पूछ सकते. स्टेट लिस्ट में क्या क्या आ रहा है एंड ऑल. फिर भी देख लो क्या बोला है इसने. ऑल बिल अदर देन मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन एनी हाउस. मनी बिल के अलावा हर एक बिल है ना, वो कोई भी हाउस में जा सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है. जैसे अभी मैंने कल बोला वक्फ बिल करके एक है, वो पास हुआ. ठीक है, तो वैसा कहाँ से भी कर सकते हैं कोई भी हाउस से. बट मनी बिल है वो आपको लोकसभा से ही ओरिजिनेट होता है. बराबर, वो पावर खाली लोकसभा के पास. नो बिल कैन बिकम ए लॉ अनलेस एग्रीड बाय बोथ द हाउस. तो लॉ नहीं बनेगा अगर आपने खुद दरखास्त रखा, आपने बोला भाई पनिशमेंट 1 साल की है कोई चीज की, बराबर, अभी 5 साल करो, तो वो पास नहीं होगा अनटिल दोनों हाउस उसमें एग्री करे. बराबर है, वो एक सिंगल हाउस से वो काम नहीं होगा. इफ देयर इज ए डिसएग्रीमेंट, ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट है, द प्रेसिडेंट में समन बोथ द हाउस. अगर आपने दोनों एग्री हो गए देन कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी बोला ओके ओके बरोबर है ये चीज. अगर नहीं हुआ
तो समन मतलब बुलाएंगे, तो प्रेसिडेंट बुलाएंगे दोनों हाउस को जॉइंट मीटिंग और उनको डिस्कस करने के लिए बोलेंगे भाई नाउ यू डिसाइड वी हैव टू पास दिस लॉ, फिर मेजोरिटी या जो भी है वो हिसाब से पास करेंगे. एट द जॉइंट सीटिंग इश्यू आर डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग. तो वोटिंग से जो मेजोरिटी है, अगर मेजोरिटी बोल रही है कि नहीं वो नहीं करना है पास, तो नहीं होगा पास. अब मेजोरिटी बोलेगी करना है तो पास हो जाएगा. बराबर. तो पूरा प्रोसेस है. अगर आप कुछ भी नया चीज ला रहे हो ना, इट इज अ प्रोसेस. तुम मैटर इन यूनियन लिस्ट पूछ सकते हो कौन सी मैटर आती है. द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, वो बना सकता है लॉ किसके रिलेटेड, सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में कौन से हमने डिस्कस किए पहले भी. डिफेंस जो मेजर है, मतलब मेन टॉपिक है, ये कंट्री के रिलेटेड, मतलब एक ऊपर का लेवल. फॉरेन अफेयर, तो अभी स्टेट लेवल क्या करेगा फॉरेन अफेयर का. डिफेंस क्या कर पाएगा, मिलिट्री का पावर तो ऑब्वियसली सेंट्रल के पास होना चाहिए. स्टेट क्या कर पाएगा, छोटा है स्टेट, उसके लिए इतना कैपेसिटी नहीं है मैनेज करना. बैंकिंग देखो, कम्युनिकेशन, ये सब उनके पास है. अभी जैसे आपको पता रहेगा वो ही हैज अप्लाइड अपना ये ना क्या नाम, फॉर लाइसेंस, उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो आ जाएगा अपने पास. वो कौन है वो स्पेस में छोड़ता है वो रॉकेट, वो सब क्या नाम है उसका, दीप. क्या सर? वो स्पेस में रॉकेट अभी वो लेके आया ना, वो अपना सुनीता सैटेलाइट. विलियम्स को, वो बंदे का नाम क्या है. मालूम नहीं, हाँ पता नहीं. अरे नासा. इलॉन मस्क. हाँ, नासा या इसरो. एलन मस्क बरोबर है. तो एलन मस्क की कंपनी ने ऑलरेडी इंडिया में फॉर SpaceX. कम्युनिकेशन इंटरनेट के लिए, इंटरनेट सर्विस के लिए एप्लीकेशन दे दिया है. अगर वो आ गया देन जो हमारी स्पीड है ना उससे 100 टाइम बेटर स्पीड मिलेगी अपने को, बिकॉज उसके सब सैटेलाइट ऊपर है एंड ही हैज टू जस्ट गिव द कम्युनिकेट, वो जो उसका वायरिंग है वो सब करना पड़ेगा या व्हाटएवर उसका जो भी मैकेनिज्म. तो कम्युनिकेशन वो अप्रूवल कौन करेगा, मतलब सेंट्रल से अप्रूवल आएगा. इट इज लाइक दैट, बरोबर है. तो जस्ट बता रहा हूँ कि ये सब मैटर में स्टेट कुछ नहीं करेगा, स्टेट का रोल नहीं. अभी महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर उसको एलन मस्क को परमिशन नहीं दे सकता है कम्युनिकेशन, मतलब उसकी सर्विस यहाँ पे लाने के लिए, वो मेन दिल्ली ही देगा. बरोबर है, वैसा आई मीन टू से. देन मैटर इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से वो देखो, अलोंग विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन कॉन्करेंट लिस्ट. तो याद रखो आपको यूनियन लिस्ट में क्या क्या है वो पूछ सकते हैं. कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीज आती है, तो एडॉप्शन, फॉरेस्ट, ये सक्सेशन का मतलब वो होता है, मतलब वो जो हमारे हायर का था ना, वो मतलब आपके वंशज को क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, वो कुछ तो है. सक्सेशन का मीनिंग वो है. तो उसके रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो इट विल बी वो बना सकते, मॉडिफाई कर सकते. ट्रेड यूनियन, if there is a conflict between union parliament and state legislator on any law in this list the union law will prevail. मतलब अगर ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, अभी यूनियन वाले ने बोला कि ये करना है, स्टेट बोला नहीं करना है, तो यूनियन वाला बोलेगा होगा अल्टीमेटली, बराबर. उसकी चीज को मान्य रखना पड़ेगा. रेसिडुअल पावर बहुत इजी है. ये सब में अभी बहुत सारी चीजें है जो ये लिस्ट में नहीं है और उसका डिसीजन लेना है, तो वो पावर किसके पास है, तो वो यूनियन के पास रहेगा. द पार्लियामेंट पॉजेस रेसिडुअरी पावर, बराबर. वो सब बाकी के सब पावर पार्लियामेंट उसको डिसाइड कर सकता है. मैटर इन स्टेट लिस्ट अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 5 मिनट पहले. स्टेट लिस्ट कंप्राइज मैटर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. स्टेट के पास कौन से लिस्ट है, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, बराबर. लोकल पुलिस अपना जैसे महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, वो सब स्टेट के पास है. द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इवन ऑन सब्जेक्ट, तो पार्लियामेंट और बना सकता है लॉ, भले स्टेट में है, स्टेट का लिस्ट है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो कभी कर सकता है जब भी प्रोक्लेमेशन, मतलब घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा हो गई, वॉर छिड़ गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वो टाइम पे स्टेट वाले के जो पावर है वो मैनेज बाय सुप्रीम यूनियन कर सकता है, बरोबर. ऊपर का लेवल वाला वो उसके पावर को मॉडिफाई कर सकता है, मैनेज कर सकता है. फिर इसमें कुछ बोला है जैसे जिमित ने बोला हुआ 2/3 मेजोरिटी अगर है उनके पास राज्यसभा के पास, तो दे विल एड्रेस, वो बोलेंगे लोकसभा को, पार्लियामेंट को कि भाई इसमें तुम देखो, इसमें तो यू हैव टू रिक्वायर योर अटेंशन, इसको आप मॉडिफाई करो. तो अगर वो ऐसा बोलेंगे
तभी वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, बरोबर। जैसे अभी कोई पब्लिक हेल्थ है, तो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, दैट स्टेट वाले को लेना है एक्चुअली, लेकिन स्टेट वाला बोलेगा कि भाई वी रिक्वायर योर अटेंशन, आप यहाँ पे ये वाले सब्जेक्ट में आप इंटरफियर करो एंड यू टेक अ कॉल, बरोबर है। वैसे करके एज्यूम नेशनल इंपॉर्टेंट, बरोबर, बिकॉज वो स्टेट के रिलेटेड नहीं है। जैसे कोविड का केस था लेट्स से, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल हब, तो वो अपने हाथ में है, मतलब चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, लेकिन द सेम टाइम इट विल अफेक्ट द होल कंट्री, बरोबर है। तो बाद में वो बोलेंगे सेंट्रल वाले को कि भाई आप देखो अभी क्या करना है, व्हाट स्टेप्स वी आर सपोज टू टेक, शुड वी डू लॉकडाउन और नॉट, ऐसा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो टाइम पे वो इंटरफियर कर सकते हैं। तीसरा ऐसा केस है, कभी इंटरफियर कर सकते हैं स्टेट के मैटर में, कि जब स्टेट नहीं बोला, स्टेट के दो या उससे ज्यादा स्टेट ने बोला कि भाई तू है ना आके हमारी ये लिस्ट में हमको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करो, बरोबर है। बट वो अगर कोई अमेंडमेंट होता है या मॉडिफिकेशन होता है, वो पर्टिकुलर वो स्टेट में ही होगा। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र ने बोला कि हमारी ये लिस्ट में ये जो टॉपिक है उसमें हमको इश्यू आ रहा है, तो आप उसको इंटरफियर करो, तो यूनियन वाले ने उसको मॉडिफाई किया, तो खाली महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होगा, बाकी सब स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वो इश्यू महाराष्ट्र को है ना, सबको नहीं है, तो क्यों सबको अफेक्ट होना चाहिए, वैसा, बस उतना लिखा है यहाँ। Then ordinances, the president is empowered to promulgate मतलब सोचना, विचार करना उसके ऊपर, ordinance at a time when the parliament is not in session. It has the same effect on act. All ordinance must be put up. Ordinance मतलब एक कोई रिपोर्ट या कोई लॉ या कोई भी चीज है जो आपने नया बनाया हुआ है, that is called ordinance. तो all ordinance must be put up before both the house. अभी आप कुछ नया लेके आए, बरोबर है, कोई नया लॉ लेके आए या नया कोई रूल्स लेके आ गए, तो उसको दोनों हाउस के सामने रखना पड़ेगा फॉर अप्रूवल। ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 weeks फ्रॉम री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। मेरे को लगता है ऐसा है कि कुछ 6 महीना के बाद उसको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी बोला है, पहले ऐसा बोला था, अगर आपको पता नहीं, महाराष्ट्र में ऐसा बोला था कि जो बाइक चलाते हो उसमें जो पीछे बैठता है ना, उसको भी कंपलसरी हेलमेट पहनना पड़ेगा, अगर नहीं पहना हुआ है तो आपको 1000 का फाइन है, ऐसा एक लॉ लेके आए वो लोग। बट ग्रेजुअली थोड़ा वो लोग ने क्या किया, रुकाया, देन फिजिबिलिटी चेक किया कि अभी 2 लोग बैठे हैं तो दोनों के सिर पे हेलमेट है, तो इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैवल, वो जम नहीं रहे, जो राइडर है उसको नॉट कंफर्टेबल। फिर वो लोग ने सीज किया, बोला अभी मत यूज करो उसको, डोंट अप्लाई, मतलब एप्लीकेबल मत रखो, पहनना है तो पहन सकते हो बट मैंडेटरी नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा सीज करके देन यू कैन एबल टू अप्लाई, अनलेस दे आर अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस। तो जब भी दोनों हाउस ने अप्लाई कर लिया, अप्रूव किया, देन यू कैन एबल टू इम्प्लीमेंट, नॉट अदरवाइज। पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, व्हेन देयर इज टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। कभी कभी आपने देखा श्रीलंका में ऐसा हुआ था, पूरा सब पब्लिक सिविल पीपल वेंट टू द पार्लियामेंट, सब चीज तोड़ दिया, नो मिनिस्टर, कोई भी नहीं था, मतलब वहां पे प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, वो भाग गया, बरोबर है। तो ऐसी इमरजेंसी आ गई, ओके, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द स्टेट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम द लेजिस्लेटर। तो ऐसा कुछ हो गया, देन एवरीथिंग विल बी हैंडल बाय द पार्लियामेंट, वो लॉ बना देगा, जो भी नया लॉ इम्प्लीमेंट करना है वो कर सकता है, होल एंड सोल पावर विद दैट, बिकॉज वो टाइम पे अप्रूवल लेने के लिए बैठोगे, काम ही नहीं होगा, इट्स वेरी हैवोक। Legislator in a state concern and assume all power including financial power of the passing the state budget। और वो टाइम पे स्टेट की हर एक चीज विल हैंडल बाय द पार्लियामेंट, वो खुद करेगा सब काम, बराबर, बिकॉज वो टाइम पे इमरजेंसी, आप क्या करोगे, यू कैन, स्टेट है ही नहीं, स्टेट के एग्जिस्टेंस के प्रॉब्लम है, तो लॉ ऑर्डर मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, तो सेंट्रल करेगा सब चीज। तो ये सब पावर आप देख लेना, ये कौन सा है आपका लेजिस्लेटिव पावर है। नाउ यू हैव ए फाइनेंशियल पावर, तो उनके पास क्या क्या पावर है, वो मनी बिल का हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट फिर भी देख लो, बजट है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है, ये मैं बताऊंगा, वोट ऑन अकाउंट, सैलरी, परमिशन फॉर टैक्सेस, कितना सारा है भाई पढ़ाई। चलो करो, कौन बोल दी पढ़ो।
Yes, sir. Matters in the state list. नहीं, ये बोले बजट. फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल हाँ, पावर। sorry, sir. Financial power. A money bill can originate in the Lok Sabha only. After a money bill is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha for its recommendations, which it must make within 14 days. In financial matters, the Rajya Sabha has only an advisory role. The budget. The Parliament passes an union budget containing estimates of receipts and expenditure of the government for a financial year. The railway budget was integrated with the union budget from 2017 to 2018. Supplementary grants, it if the amount authorized to for the current financial year is not sufficient, the government may make a fresh demand known as supplementary grant. Vote on account. If the union budget is not passed before the beginning of the new financial year, that is April 1, there would be no money for executive to spend. There is therefore a device known as vote on account which authorizes the executive to draw funds from the consolidated fund until the budget is passed by the parliament. Salaries. The salaries and allowances of the MPs and the ministers are determined by the parliament. Permission for taxes. No tax can be imposed or money spent by the government without any approval of the parliament. In matters of finance, the Lok Sabha enjoys more powers than the Rajya Sabha. Money bills can be introduced only in the Lok Sabha. Once money bills go to the Rajya Sabha, they have to be sent to the Lok Sabha within 14 days. The Lok Sabha may accept or reject the Lok. एक second ना sir. The Lok Sabha may accept or reject the recommendations of the Rajya Sabha. हाँ ठीक है, फेयर। तो एक था अपना फाइनेंशियल पावर, ये सब शॉर्टकट लिखा हुआ है, देख लेना। बजट इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मनी बिल कैन ओरिजिन हमने देखा, लोकसभा में से ओरिजिन हो सकता है, उसके अलावा कहाँ पे भी, बिकॉज फाइनेंस का मैटर है, पैसे का मामला है, तो स्टेट वाले का अलग रोल रहेगा, वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, तो वैसा नहीं चलेगा ना, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है। ओके, इंडिया ग्रोथ होना चाहिए, नहीं कि पर्टिकुलर स्टेट। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इंडिविजुअल, ऐसा नहीं चलेगा। तो आफ्टर द मनी बिल इज पास बाय लोकसभा इज सेंड टू राज्यसभा। आपने मनी बिल मतलब एक टैक्स नया लगा दिया कोई प्रोडक्ट पे, तो वो जाएगा राज्यसभा में। बताने जनरली वो खाली फॉर्मेलिटी है, फॉर इज रिकमेंडेशन। रिकमेंड मतलब उसमें बोलेंगे 12% टैक्स लगाया कोई प्रोडक्ट पे जो इस पे कभी तक टैक्स ही नहीं था, बोला 12% लगेगा, समझो वीट के ऊपर, वीट की प्रोडक्ट के ऊपर 12% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो बाद में वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा बोले नहीं नहीं 12% बहुत ज्यादा है, इट हैज टू बी 5%। तो वो उनको लगेगा जस्टिफिकेशन बरोबर है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन लोकसभा उसको अमेंड करेगा, मॉडिफाई करेगा। नहीं तो अगर उनका विद इन विच इज मस्ट मेक विद इन 14 डेज, तो 14 दिन के अंदर उनको रिटर्न देना पड़ेगा उनका रिप्लाई, और उनको मानना नहीं मानना उनके ऊपर है, लोकसभा के ऊपर। बराबर, मैंने दीप को बोला कि मैं कल फिजिक्स का टेस्ट रख रहा हूँ, तो आपने दीप ने बोला कि नहीं सर एक काम करो, आप आधा 4 पार्ट है ना, 2 पार्ट का ही रखो। तो अगर मुझे एग्री है तो मैं हाँ बोलूंगा, मैं बोला ठीक है चलो ओके 2 पार्ट का रखते हैं, आज कल 2 पार्ट का रखेंगे, परसों 2 पार्ट का। मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पूरा ही टेस्ट लेना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं आई हैव फुल अथॉरिटी टू कंडक्ट होल टेस्ट। बराबर है, वैसा है। तो आप इसीलिए लोकसभा हो कि राज्यसभा हो? लोकसभा। मैं लोकसभा हूँ। अरे अब मेरे ऊपर तो हुई नहीं ना तो मैं लोकसभा हूँ, आप राज्यसभा हो, बराबर है। तो टेक्निकली तो राज्यसभा बड़ा होता है लोकसभा से। नहीं नहीं, क्यों नहीं, सर लोकसभा, पावर ज्यादा लोकसभा के पास होती है। हाँ लोकसभा के पर पास बड़ा पावर है। ज्यादा राज्यसभा होता है। क्या क्या नहीं नहीं, टू इवन 550 मेंबर है, और लोकसभा इज पब्लिक के से 250 चुने हुए लोग रहते हैं वहां पे, तो इट इज अ हाईली पावर्ड पीपल। और राज्यसभा में जो 550 पीपल जो थे वो सिलेक्ट राज्यसभा में 550 मेंबर्स होते हैं या 250 होते हैं? 250 राज्यसभा हाँ इज हाँ। स्मॉल, लोकसभा इज हायर 550 मेंबर। अच्छा, ऐसा हो जाए क्या? तो फिर लोकसभा टेम्पररी हाउस और राज्यसभा परमानेंट हाउस क्यों है? अरे वो
वो अलग मैटर है, वो जाने दो, वो तो मतलब पब्लिक सिलेक्ट करके लाती है, वो सब मैटर है। बट पावर है ना, वो लोकसभा के पास हाईएस्ट रहता है। और एवरी होल एंड सोल है ना, आप देखने जाओगे तो लोकसभा है। स्टेट ये राज्यसभा इसके लिए बनाया है कि जो स्टेट के रिलेटेड जो इश्यू है वो लोकसभा कितना मैनेज करेगा, तो जो लोकल पीपल है उनका मैनेज करने के लिए, उनका इंटरेस्ट इंटेक्ट करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप राज्यसभा के जो लोग हैं वो आगे रहते हैं, वो लीडर रहते हैं, वो सब एड्रेस कर सकते हैं कि ये इशू आ रहा है हमारा। तो लोकल में काम करने के लिए राज्यसभा को मतलब बनाया हुआ है, फॉर्मेशन किया हुआ है। इन फाइनेंशियल मैटर राज्यसभा हैज ओनली एन एडवाइजरी रोल। देखो फाइनेंशियल मैटर में खाली एडवाइस कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं भाई। वो ना बोला तो भाई ठीक है भाई, जो करना है कर दो, और क्या बोलूं, मैंने तो ऐसा एडवाइस दिया, आप मुझे बोलोगे सर मैंने तो बोला आपको 2 पार्ट में टेस्ट लो, फिर आपके ऊपर, आपको जो करना है करो। एनीवे आपके पास उससे बियॉन्ड कुछ एडवाइस देने के अलावा और कुछ भी नहीं है, बरोबर है। बजट, द पार्लियामेंट पास द यूनियन बजट कंटेनिंग द एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मतलब वो बजट पास करेगा, बजट देगा कि भाई हमारे पास इतना पैसा आएगा और इसके सामने हम इतना खर्चा करने वाले हैं, वैसा करके एक बजट पे मतलब ये करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। द रेलवे बजट वॉज, एक छोटा सा है, पहले अलग अलग होता था, रेलवे का एक अलग बजट आता है, बरोबर है। जैसे मतलब एक रेलवे में इतना हमारा पास टिकट से इनकम है, उसके सामने हमारे इतने खर्चे हैं, मतलब नई लाइन डाल रहे हैं, नई ट्रेन हमने परचेस की है, तो एक पूरा अलग बजट प्रेजेंट करते थे वो लोग। सेपरेट दिन रहता था जिस दिन बोलते थे रेलवे बजट, ऐसा करके आता था, बराबर है। तो वो टाइम पे क्या होता था, इवन स्टॉक मार्केट में क्या होगा कि रेलवे के रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, समझो कोई कंटेनर बना रहा है, मतलब बोगी बना रहा है, कोई ट्रैक बना रहा है, तो वो सब शेयर में बहुत फ्लक्चुएशन होता है। बिकॉज वो बजट में ऐसा होता है कि भाई वो लोग ऐसा डिसाइड करेंगे कि ड्यू टू हाई पॉपुलेशन वी आर वी आर गोइंग टू बाय 100 न्यू ट्रेन। तो वो जो ट्रेन जो बनाता है वो कंपनी का शेयर का भाव फटाक से ऊपर आ जाएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट अ गुड बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वैसा सब थे, उसको रेलवे बजट बोलते थे। बट ग्रेजुअली क्या किया उन्होंने, दोनों, ये नॉर्मल यूनियन बजट जो हम पैसे के बाद वो डिस्कस करते हैं, वो मतलब हमारा पूरा क्या टैक्स से पैसा आ रहा है, हमारा मिलिट्री में क्या खर्चा होगा, हॉस्पिटल में क्या खर्चा करेंगे, वो सब, तो वो सब और रेलवे बजट मिक्स कर दिया, दोनों एक ही दिन में दे आर गोइंग टू प्रेजेंट। तो लिखा है द रेलवे बजट वाज इंटीग्रेटेड विद यूनियन बजट फ्रॉम 2017-18। मे बी दे आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, मतलब आपने आपने समझो इफ द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द करंट फाइनेंशियल ईयर इज नॉट सफिशिएंट। समझो आपने आपने कोई सोच कम पड़ गया थोड़ा। हाँ आपने टर्फ में जाने के लिए मम्मी से 200 रुपया लिया, बरोबर। एजम्पशन क्या था कि भाई 10 लोग आएंगे, बरोबर। टर्फ में तो हमारा कॉस्ट था 200 रुपया पर पर्सन, लेकिन क्या हुआ 8 ही लोग आए, तो आपका 200 कम पड़ गया। अभी डिफरेंस का क्या करोगे, तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई देखो हमारे मम्मी से आप मांगोगे भाई 50 रुपया और लगेगा मुझे, बिकॉज दिस इज द सिचुएशन। तो करंट फाइनेंशियल इज नॉट सफिशिएंट, द गवर्नमेंट में मेक अ फ्रेश डिमांड नोन एज सप्लीमेंट्री ग्रांट। पूछ सकते 2 मार्क में व्हाट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट, बहुत इजी है, नो इश्यू। वोट ऑन अकाउंट क्या है, इफ द यूनियन बजट इज नॉट पास बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल देयर वुड बी नो मनी। मतलब ये क्या होता है, आपने बजट बजट आपने पे, मतलब मैंने आपको बोला बजट ये है, मतलब मैंने आपने मम्मी को बोला फॉर एग्जांपल कि मुझे लाइक आई वांट टू गो फॉर ए पिकनिक, मुझे 2000 रुपया चाहिए। तो आपने बोल दिया 1 तारीख, अभी वो समझो 31 को आपने बोला, नाउ यू आर सपोज टू गो बाय 5 अप्रैल। आपने 31 मार्च को बोला, 5 अप्रैल को आपका पिकनिक है। लेकिन अभी क्या हुआ मालूम है, मम्मी ने बोला कि आई नीड टू टॉक टू योर फादर। तो अभी वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में टाइम है। तो आप क्या करोगे, अभी आप पापा बाहर गाँव गए फॉर एग्जाम्पल, तो 10 दिन के बाद आने वाले हैं, अभी क्या करोगे, आपका पिकनिक चला जाएगा, फिर तो 5 तारीख के बाद तो खत्म होगी कहानी। देन तो लिखा है देयर वुड बी नो मनी फॉर एग्जीक्यूटिव टू स्पेंड। तो आपके पास जब तक वो अप्रूवल नहीं आएगा फ्रॉम योर डैड, देन आपका तो लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस मतलब यू विल नॉट एबल टू अटेंड योर पिकनिक। तो देयर इज देयरफॉर a device known as vote on account which authorize the executive to draw fund from the consolidated fund until the budget is passed by the parliament। तो आप मम्मी को बोलोगे कि वोट ऑन अकाउंट में पैसा दे दो मुझे, मतलब आप बोल दो कि मुझे अभी 2000 दे दो आप,
बराबर है, देन यू टेक अप्रूवल। आप पापा के पास से बाद में अप्रूवल ले लेना, बट आप अगर अभी मुझे नहीं दोगे फिर अप्रूवल आएगा, देयर इज नो सेंस, बिकॉज वो काम मेरा अटक जाएगा। तो ऐसा ही है, मतलब बजट बजट आपने बोल दिया कि ये मेरे खर्चे होने वाले, समझो मिलिट्री में 10,000 करोड़ मेरा है, रोड कॉन्ट्रैक्ट में मेरा 5,000 करोड़ मेरा खर्चा होने वाला है, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, वो पास होता है। वो ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया मतलब वो हो गया, उतना ही पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट को। उसने बोला 5,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन में मुझे चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा बोलेगा नेक्स्ट ईयर का मेरे ये प्रोजेक्ट है, मुझे इतने पैसे लगेंगे, फिर वो पास होता है। पास होता है मतलब सब मेंबर्स बोलेंगे अरे 5,000 करोड़ का क्या काम है, ये तो कम है, बहुत ज्यादा पैसा है, देन मेक इट 3,000 करोड़। तो वो पास होने के लिए वो सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। और क्या होगा, वो टाइम पे आप काम तो रुका नहीं सकते हो, आपका तो एक ब्रिज का काम चालू है तभी से, वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम तो चालू है। देन वो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा भाई तुम पैसा दो, नहीं तो हम हमारे लेबर को पैसा कहाँ से देंगे। तो वो सब सिचुएशन जब तक पास नहीं होता है तब तक पैसे का क्या करेंगे, पैसा तो चाहिए, बरोबर। तो वो टाइम पे उसको बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट, टेम्परवरी आप उसको पैसा दे दो, जब भी बजट पास हो जाएगा फिर वो एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके अंदर, वैसा है। हाँ, तो ये वोट ऑन अकाउंट का थियरी और है। हाँ, अगर पास नहीं हुआ तो? पास जनरली होता ही है वो बात बरोबर है सर आपका, बट ये सर क्या ये तो रहता पैसा गया। है, हाँ सर ये अलग है सर, ये वोट ऑन अकाउंट मतलब कंसोलिडेटेड फंड, मतलब एक वो फंड रहता है उसमें से क्या विड्रॉ बोलते हैं, करते हैं। अगर आपने जो एग्जांपल दिया ना अभी हम्म, पिकनिक वाला, हम्म, तो मैं मम्मी को डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं अपने पिगी बैंक से पैसे निकल निकालूंगा लोगे, उसमें हाँ डाल, हाँ हाँ, ऐसा हो जाएगा। बरोबर बरोबर। हाँ, मतलब एक मतलब वो फंड अलग से फंड रहता है, उसमें से निकाल के टेम्पररी दे देना। देना देना पड़ेगा। और वो क्या है, वो अप्रूवल भी देखो सी, ऐसा आपको आपकी मम्मी को भी मालूम है कि वो रियल में वो पिकनिक के लिए ही आप पैसा मांग रहे हो, बरोबर है। तो हाँ मोरले जो अप्रूवल आना है, और वर्स्ट केस में क्या होगा, वो पूरा पैसा नहीं देंगे, थोड़ा लोअर साइड पैसा दे देंगे वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि अपने पब्लिक का काम अटकना नहीं चाहिए। अभी 2 महीना तक बजट पास नहीं हुआ तो क्या करोगे, वो रोड का आधा खोदा हुआ पड़ा रहेगा, तो अपना कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, काम ही नहीं होगा। तो ये कंसोलिडेटेड फंड बोला बरोबर है, मतलब एक एक फंड रहता है, वहां से वो टेम्परवरी आप विड्रॉ कर लो। बोला हाँ, ठीक है यहाँ से ले लो, फिर हम जब भी अप्रूवल आएगा तो वहां पे हम वापस वो एडजस्ट कर लेंगे, वो डाल देंगे पैसा, बरोबर है। कभी इसका बहुत मस्त सर एग्जाम्पल। हाँ लीव करो, ये मेरा हो गया है। हाँ, जाओ जाओ। पिगी हाँ बैंक सर। का एग्जांपल अच्छा है कि टेम्परवरी में पिगी बैंक से ले लूंगा, फिर मम्मी पापा से अप्रूवल लेगी, 2,000 रुपया आएगा, वो 2,000 वापस पिगी बैंक में डाल दो। बेस्ट आइडियल आइडियल एग्जांपल है। सर मतलब वो लोग अपने पॉकेट से निकालेंगे वो काम के लिए? अरे पॉकेट नहीं रहता, ये तो क्या अपना ही पैसा है बेटा, ये देखो सिंपल बात है, ये उनका कुछ पैसा नहीं, अपने अपने टैक्स के पैसे, बरोबर है। सभी यहाँ पे एक पैसा पड़ा हुआ है 10,000 करोड़, बरोबर है, 10 CR पड़ा है, लेट्स से 10 CR पड़ा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड में समझो 3 करोड़ पड़ा हुआ है। तो अभी आपको ये पास तो हो जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ये अप्रूवल हो जाएगा, तो 2 मंथ के बाद होगा, तब तक क्या, तो भाई तब तक ये पैसे को टच मत करो, बट देयर इज ए वन फंड लाइंग हियर, एक क्या बोलते हैं इमरजेंसी फंड बोल दो एक, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ओके टेम्पररी यहाँ से विड्रॉ करो। समझो आपने बोला 1 करोड़ आपको दे दिया रोड के काम के लिए, फिर 2 महीने बाद बजट में वो के 10 करोड़ नहीं भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, 8 करोड़, तो 8 करोड़ पास हुआ, तो 8 में से 1 करोड़ वापिस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे वो लोग, तो बचा मेरा कितना 7 करोड़, तो इसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड, बरोबर है, वैसा है। तो आप इतना डिटेल में जाओ मत, जरूरत नहीं, बट एक ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये ऐसा है वोट ऑन अकाउंट का। सैलरी बोला, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एमपी एंड मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, तो ये सब पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, वो ड्रॉ करता है, डिसाइड करता है पार्लियामेंट, सैलरी ऑफ एमपी और मिनिस्टर्स। परमिशन फॉर टैक्सेस, नो टैक्स कैन बी इम्पोज और मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। देखो ऐसा मैं बोला ना, ये अप्रूवल लगेगा, आप पैसा खर्चा करने वाला है रोड कॉन्ट्रैक्ट में, कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में, तो आपको अप्रूवल लगेगा। जैसे दीप ने अप्रूवल लिया मम्मी से वैसा, ओके, अपने हिसाब से भले पिगी बैंक में भी पैसा था, बट ही कैन नॉट यूज अनलेस एंड अनटिल he will not get a permission without the approval of the parliament in matter of finance the lok sabha enjoy more power। देखो ये लिखा है, एमसीक्यू में आ सकता है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर रहता है, हर एक केस में वही है, यू डोंट हैव टू वरी, आंसर वही आएगा लोकसभा। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन, 4 कोई बिल दे देंगे,
और बोलेंगे डैश bill can be introduced only in Lok Sabha, then you should remember it is a money bill. Once the money bill go to the Rajya Sabha, they have to be sent back the Lok Sabha within a 14 days. ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, बोर्ड में 14 डेज वाला ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ है, ठीक है। द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। तो मनी बिल मतलब मैंने बता दिया 12% टैक्स बोला, वो बोला नहीं नहीं 5%, तो राज्यसभा ने बोला 5% तुम टैक्स लगाओ, 12% बहुत ज्यादा है, हमारी पब्लिक को प्रॉब्लम होगा, जो गांव में है खर्चा बढ़ जाएगा उनका टैक्स ज्यादा होने से। तो लोकसभा बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, हमको तो पैसा चाहिए, बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास, तो वो मान्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपका फाइनेंशियल है, आपका पावर इजी है, बहुत इजी है, पूछ लिया तो नसीब आपका इसमें। नाउ जुडिशियल, ओके बोलो दीप। Yes, sir. हाँ Third, हाँ बोलो भाई। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। judicial powers, impeachment of the president. The parliament performs some judicial functions. It has the right to remove the president from the office through a procedure known as impeachment. In case of violation the constitution or in case of violation of the constitution or grave misconduct, either house may frame charges against the president. If the resolution to the effect is passed by two-third majority of the total membership of the house and by the majority of members present and voting, the other house investigators the charge. If the upper house too finds the president guilty, he may be impeached and removed from the office. Removal of judges. The parliament can remove the judges of the Supreme Court and High Court, the chief election commissioner, and the comptroller and the auditor general of India if they are found guilty violating the constitution. Punishment बाकी है। हाँ पनिशमेंट। Punishment. The parliament can punish the person for obstructing the work of the parliament or showing disrespect to the house. In 1961, the parliament reprimanded the एडिटर ऑफ द ब्लिट्स फॉर ridiculity। hello, हाँ बोलो। हाँ editor of the Blitz for ridiculing the member of the parliament. Electoral functions. The Indian parliament has to perform certain electoral duties as well, such as the Parliament of India, along with the state legislatures, elect the President of India. The Vice President of India elects both the houses of the parliament. The Lok Sabha elects its own speaker, the deputy speaker from amongst its own members, while the Rajya Sabha elects its deputy chairman. Amendment of the Constitution. Both houses of the Parliament can amend the Constitution. The amendment must be passed by each house by a majority of total membership and by a two-third majority of the total members of the members present and voting. Otherwise, the amendment bill cannot be passed. In some cases, the amendment requires a ratification of approval of half of the legislative assemblies of the state. Control over the ये executives. रुको इतना रुक दो, वेट। तो Okay. अभी इसमें हम लोग का कहाँ था? हाँ ये रहा। तो अभी आपको जुडिशियल पावर क्या क्या है? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को भी आप मतलब यू कैन एबल टू रिमूव। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट है तो आप उसको टच नहीं कर सकते, बरोबर। यू कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑल्सो। द पार्लियामेंट परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शन। इट हैज अ राइट टू रिमूव प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का कुछ भी गलत किया हुआ है, पर इम्पीचमेंट मतलब निकालना। ओके, इसमें ऐसा एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इम्पीचमेंट का बताता हूँ। टू चार्ज विद क्राइम और मिसकंडक्ट, ऐसा कुछ है इम्पीचमेंट का मीनिंग, बरोबर। मतलब आप उसको, अगर उन्होंने कुछ गलती किया है, उन्होंने कुछ ब्राइब लेके कुछ समझो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया टू अदर कंट्री, समझो आपकी मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन है कि लाइक यू नो वी आर गोइंग टू गो फॉर ए वॉर, मतलब हम लोग कल रात को अटैक करने वाले पाकिस्तान पे, देन अगर वो लीक हो गया इंफॉर्मेशन, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बरोबर है। तो अगर ऐसा कुछ पाया गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी अपना नेशनल के रिलेटेड कोई पैसा का मामला है, फाइनेंस का इशू है, जो भी है, तो अगर मिसकंडक्ट किया है, देन यू कैन एबल टू, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट को हटा सकते हो,
ठीक है, वैसा है। इट हैज अ राइट टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस थ्रू ए प्रोसीजर नोन एज इम्पीचमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ, इन कौन से केस में बोला क्यों ऐसा आप हटा सकते हो, तो ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रेव, ग्रेव मतलब सीवियर मिसकंडक्ट, ओके, आइदर हाउस में फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द, मतलब दोनों में से कोई भी हाउस उसको चार्ज लगा सकते, प्रेसिडेंट को बोल सकते भाई देख तूने ऐसा गलती किया हुआ है, ओके, यू हैव टू गिव द रेजिग्नेशन, ठीक है। इफ ए रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास बाय 2/3 मेजोरिटी, 2/3 लोगों ने बोला कि इनको हटाओ, तो उनको हटाना पड़ेगा, बस इतना ही है, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस, तो जज है, हाई कोर्ट में कोई जज बैठा हुआ है और उन्हें क्या किया, पैसा लेके कोई डिसीजन ले रहे हैं, ओके, इन्फ्लुएंस हो गए पैसे से और किसी को जबरदस्ती छोड़ दिया या किसी को सजा दे दिया, देन द पार्लियामेंट कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनको भी हटा सकते हैं, जनरली सुपर पावर है ये बोल सकते हो जज के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो भी उनको आप हटा सकते हो। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इफ दे आर फॉर्म, मतलब ये जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमने देखा सीईसी, देखा ना क्या था अपना फॉर्मेशन, क्या था सीईसी का, बोलो कोई वो आइडिया? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन वाह वाह, कमिश्नर। वेरी गुड, नाइस ऑफ यू। तो चीफ इलेक्शनल कमिश्नर सीईसी था, उसके नीचे 2 था, इलेक्शनल कमिश्नर और इलेक्शनल, बरोबर ऐसा कुछ था। और पावर का क्या था फंडा, पावर यू नो सबसे मतलब सर ज्यादा पावर सीईसी के पास रहता था, पर सैलरी दोनों का तीनों का सेम ही था। वो पता नहीं, मेरे हिसाब से तीनों के पास सेम पावर था, बट ऐसा कुछ था कि जो डिसीजन है वो 2 लोग का मेजोरिटी से डिसाइड होता है, हाँ हाँ वो बरोबर। बरोबर। तो एक जस्ट बता रहा हूँ, वो लास्ट ईयर किया था, मुझे थोड़ा याद है, ठीक है। तो जज को रिमूव कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हैं, बराबर, उन्होंने कुछ गड़बड़ की, कोई पार्टी के फेवर में वो डिसीजन ले रहे, बराबर, अगर जो भी प्रोसेस है वो किसी फेवर में वो कर रहे, किसी के फेवर में, देन यू कैन एबल टू रिमूव इट, बराबर। जो दो उनके पास बहुत अच्छा पावर है, तो ऐसा मतलब नहीं है, मतलब देखो अल्टीमेटली वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भले किसके पास कितना भी पावर रहेगा, दैट इज नॉट परमानेंट, अगर वो कुछ भी गलत कर रहे हैं ना, तो देयर इज होल अथॉरिटी टू रिमूव देम, कोई भी चीज उसको रुका नहीं सकता निकालने से, और वो अच्छी बात है ना, नहीं तो फिर वो मिसयूज होगा पावर का। देन कंट्रोलर, ये देखो एक और है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो अपना ये बजट है या जो भी फाइनेंशियल चीज है वो ऑडिट होता है, मतलब ये बरोबर हुए है कि नहीं, खर्चे बरोबर है कि नहीं, बरोबर, वो पूरा सिस्टम बरोबर से फाइनेंस का चल रहा है कि नहीं, तो देयर इज सम पीपल हु ऑडिट द थिंग, ऑडिट मतलब चेक करेंगे, बरोबर। आपने बोला कि मम्मी को बोला 250 रुपीज चाहिए कि मेरे 8-10 लोग के 8 लोग हो गए, तो ऐसा नहीं है, फिर आपकी मम्मी चेक करेगी, हाँ भाई सच में 8 लोग थे कि 10 लोग थे कि जबरदस्ती दीप एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, तो ऑडिटर कंट्रोलर मतलब वो मैनेज करेगा सब पैसा बरोबर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो उनका पैसा नहीं है, इंडिया का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक का पैसा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा अगर कोई ये ऑडिटर भी कुछ गड़बड़ करता पाया गया, देन उनको भी निकाल सकते हैं, तो रिमूवल ऑफ जज में इतने सारे लोग को आप निकाल सकते हैं, मतलब पावर्स वाले जो पीपल है उनको भी यू कैन एबल टू रिमूव इफ फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोला गया है उसके अलावा आप कुछ कर रहे हो, प्रॉब्लम। पनिशमेंट, पार्लियामेंट कैन पनिश अ पर्सन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ पार्लियामेंट और शोइंग डिसरिस्पेक्ट द हाउस, तो कुछ भी बोल रहा है, मिसबिहेव कर रहा है जब भी डिस्कशन हो रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है। 1961 द पार्लियामेंट रिप्रिमेंडेड द एडिटर ऑफ ये कोई एडिटर है, ब्लिट्स ऑफ रिडिकुलिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी किसी ने पता नहीं कुछ तो गड़बड़ किया था तो उसको निकाला था, एक एग्जांपल दिया हुआ है, डोंट हैव टू वरी, छोड़ो। इलेक्टोरल फंक्शन मतलब कैसे आप इलेक्शन किसी को सिलेक्ट करना है तो क्या आपके पास काम है, मतलब हाउ यू मैनेज दैट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद द, ये क्या है, स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिलेक्शन का 1 मार्क पूछ सकते हैं, शायद पूछा भी है बोर्ड में, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट ही लिखा है ना, आगे क्या है? हाँ सर आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। रिज्वाइन कर, ये लास्ट में क्या वर्ड लिखा है एस के बाद, एनीबॉडी? स्टेट ही है ना, स्टेट। स्टेट, हाँ।
तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद द स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सिलेक्ट करता है पूछेंगे, हाँ, एक मार्क। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड by both the house of the parliament, again 1 mark question। the lok sabha elect its own speaker and deputy speaker। तो लोक own speaker और deputy speaker ऑलरेडी हमने आगे देखा, elected by basically lok sabha from amongst its own members while the राज्य सभा elect the deputy chairman। तो देखो ये सबका सिलेक्शन है ना, कहाँ से हो रहा है ना, बस उतना इसमें लिखा हुआ है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ स्मॉल पार्ट। कर लेना है कि बाद में करेंगे? बाद में करते हैं। चलो ठीक है, बाद में एक दिन वापस सैटरडे या कुछ करके, आधा घंटे का काम है बट हो यस जाएगा। हाँ, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब इम्पोर्टेंट है, करो, बहुत अच्छा है। अभी इतना सर आपने ये सर है आपने ना, चेक कर लिया? ये है ना